بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں دل و جان سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ حضور نبی علیہ السلام ہم سے راضی بھی ہوں اور ہم سے خوش بھی ہوں. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث شریف کا مفہوم ملتا ہے، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ وہ شخص قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا رحمت للعالمین. میرے بھائیو، حضور نبی علیہ السلام کا ادب، حضور نبی علیہ السلام کی تعظیم دین اسلام میں ہم مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے. حضور نبی علیہ السلام کا ادب صحابہ کیسے کرتے تھے؟ ایک تو ہوتی ہے حضور نبی علیہ السلام سے محبت اور ایک ہوتا ہے ادب. لیکن سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے محبت میں؟ ادب. اگر ادب نہیں ہوگا تو محبت خالص نہیں کر سکتے ہم. لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی قیادت میں حضور نبی علیہ السلام جہاں بھی تشریف لے جاتے صحابہ کرام کے ہمراہ وہ فتح یاب ہو کے آتے، علاقوں کو فتح کر لیتے. حضور نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں اللہ نے اسلام کو بڑی کامیابی عطا فرمائی. بہت قربانیاں تھی صحابہ کی، اہل بیت کی. تو آپ جہاں بھی جاتے کامیابی آپ کے قدم چومتی. جو یہ کافر تھے، اسلام دشمن تھے، وہ حیران ہو گئے بھائی آخر مسلمانوں کے پاس وہ کون سی چیز ہے کہ جہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں کامیاب ہو کے آتے ہیں. یہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے انہوں نے ایک بندہ مقرر کیا اور مدینے بھیجا، ایک نمائندہ بن کے آیا. اس کو جا کے کہا بھائی تم جا کے دیکھو کہ آخر کون سی مسلمانوں کے پاس وہ شے ہے، کون سی ہستی ہے، کون سے ہتھیار ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں. ایک شخص آیا مدینے میں اور جیسے ہی وہ مدینے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کافی رش لگا ہوا، بھیڑ ہے اور صحابہ کرام کثیر تعداد میں موجود ہے. پوچھنے لگا بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس شخص نے کہا تجھے نہیں پتا یہاں اللہ کا حبیب وضو فرما رہا ہے، اللہ کا حبیب وضو فرما رہا ہے. حیران ہو گیا اور جب آگے قدم اٹھائے تو دیکھا کہ آمنہ کے لال حضور نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے وہاں بیٹھ کے اور صحابہ کرام ارد گرد کھڑے ہیں. آقا کریم وضو کے مطابق اپنے منہ مبارک کو دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، ناک مبارک میں پانی ڈالتے ہیں، پورا وضو آپ فرما رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ صحابہ کرام حضور نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے زمین پر نہیں گرنے دے رہے. اتنا ادب. جیسی پانی کرلی کی آقا کریم نے پانی باہر نکالا تو صحابہ کرام فوراً ہاتھ آگے کر لیتے ہیں اور کوئی اپنے ہاتھوں پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے منہ پہ مل رہا ہے. جب حضور نبی علیہ السلام سرکار مدینہ جب وضو فرما کر اٹھے اس جگہ سے تو دیکھا زمین بالکل خشک، ایک قطرہ بھی پانی کا نیچے نہیں گرنے دیا. وہ شخص دیکھ کر حیران ہو گیا اور فوراً واپس اپنے وطن آیا. انہوں نے پوچھا بھائی تو بڑی جلدی آ گیا؟ کہنے لگا مجھے پتہ لگ گیا مسلمانوں کی کامیابی کا راز ہے کیا. کہا کیا ہے؟ کہا وہ اپنے نبی کی تعظیم ہی بڑی کرتے ہیں. اللہ کے رسول مسلمانوں کے نبی وضو فرما رہے تھے اور ان کے غلام ان کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ جو غلام اپنے آقا کے وضو کا پانی ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دے رہے وہ ان کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ اور جو خون نہیں گرنے دیں گے، جو وضو کا پانی نہیں گرنے دیں گے، وہ حضور نبی علیہ السلام کے دین کا پرچم بھی نہیں گرنے دیں گے. اب وہ ہمارا فرض ہے. صحابہ کرام نے تو پانی نہیں گرنے دیا، خون نہیں گرنے دیا. اب ہمارا فرض ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے دین اسلام کے جو پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں، حضور نبی علیہ السلام اس سے معلوم ہوا کہ آقا کریم کا ادب ہی پورے دین کا حسن ہے. حضور نبی علیہ السلام کے جب تک ہم قریب نہیں ہوں گے، جب تک ہم ان کا ادب نہیں کریں گے، ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. آج معاذ اللہ کچھ مسلمان ایسے ہیں دنیا میں جو ذلیل ہو رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود. وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ معاذ اللہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہ آقا کریم کے بے ادب ہیں، جو حضور نبی علیہ السلام کو گستاخ ہیں. اور جو بے ادب ہوگا، جو گستاخ ہوگا، اس کے حصے میں ذلت و رسوائی کے اور کچھ نہیں آئے گا.
जो अदब करेगा अल्लाह करीम उसको अपना महबूब बना लेगा। लिखा है कि एक शख्स था, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ का मफहूम मिलता है, एक ईसाई था। वो आका करीम का नाम मुबारक जब भी लेता था ना, माज़अल्लाह, अपना मुंह टेढ़ा कर लेता था। अल्लाह को अपने महबूब की बेइज्जती पसंद ना आई और अल्लाह ने क्या किया, उसका मुंह ही सारी जिंदगी के लिए टेढ़ा फरमा दिया। अब वो जब भी बात करता उसका मुंह टेढ़ा रहता। या अल्लाह ने अपने महबूब की बेइज्जती को पसंद नहीं फरमाया, फौरन उसको सजा दी। और यह हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ का मफहूम है। तो यार देखो, जो अदब करेगा उसको इज्जतें, उसको रहमतों से नवाजा जाएगा। जो हुजूर का बेअदब गुस्ताख होगा उसको जिल्लत और रुसवाई से नवाजा जाएगा। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का अदब करने वाला बनाए। मेरे भाइयों की लिखा है, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो दुश्मन था ना, आका करीम का दुश्मन था अबू जहल। हमने बड़ा जिक्र सुना उसका, और बहुत सख्त दुश्मन था उनका। अब अबू जहल जो था, वो मादरी ज़बान उसकी क्या थी, अरबी। जैसे हमारी उर्दू ज़बान है, हम उर्दू के हर लफ्ज़ को जानते हैं, सराइकी को जानता होगा। उसकी मादरी ज़बान थी अरबी। वो अरबी के हर लफ्ज़ का मायने जानता था। और जब उसे सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मायने है, उनका मायने तो है जिसका मफहूम है कि जिनकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए, जिनकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए, वो आका करीम के नाम मुबारक का मायने है। और उसने कहा, मैं उनको मोहम्मद भी कहता हूँ और उनकी शान में माज़अल्लाह ऐब भी निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मुझसे बड़ा तो कोई बेवकूफ़ ना हुआ। अबू जहल खुद से कहने लगा कि मैं उनको मोहम्मद भी कहता हूँ, उनकी तारीफ़ भी करता हूँ और उनको माज़अल्लाह घटाने की कोशिश भी करता हूँ उनकी शान में। लेकिन आका करीम की शान को कोई घटा सकता? सूरत पर कोई थूक फेंके क्या वो सूरत पर पहुँचेगा? बल्कि वो गंदगी उसके मुँह पर आके गिरेगी। इसलिए आका करीम भी सूरत चाँद से हर चीज़ से बढ़कर चमकते धमकते अल्लाह के प्यारे नूर हैं। जो उन पर माज़अल्लाह कुछ ऐसा घटिया सोच भी रखेगा, आका करीम की मोहब्बत में अल्लाह खुद उस शख्स को रुसवा कर देगा। तो कहते हैं कि अबू जहल ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक माज़अल्लाह बेअदबी के साथ लेने की कोशिश की और मक्के वालों को कह दिया कि भाई हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को मोहम्मद नहीं कहना, बल्कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का जो नाम है आज से उनको कहना है मज़मम। क्या कहना है? मज़मम, जिसका मायने है जिनकी बुराई की गई हो माज़अल्लाह। अबू जहल ने मक्के वालों में मशहूर कर दिया। लेकिन आका करीम की बारगाह में जब एक सहाबी आए, अर्ज़ की, हुजूर अबू जहल और उसके साथी तो यूँ कहते फिर रहे हैं आपके बारे में, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ किया है, अगर मैं और आप होते तो हम उसको गिरबान पकड़ लेते। लेकिन आका करीम ने फरमाया, बनाने वाले ने मुझे मोहम्मद बनाया है, बनाने वाले ने मुझे मोहम्मद बनाया है। मैं तो वो नहीं हूँ जो वो कह रहा है, मैं तो मोहम्मद हूँ और मोहम्मद ही रहूँगा। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ और मोहम्मद ही रहूँगा। इससे पता लगा कि आका करीम का ये इतना हौसला है, अगर हमारे सामने हमारा कोई नाम बिगाड़े और सीरियस होकर बिगाड़े तो हम उसका गिरबान पकड़ लेते हैं। आका करीम फरमा रहे, भाई बनाने वाले मुझे मोहम्मद बनाया है, अब जो कहता रहे मैं तो वो नहीं हूँ, मैं तो मोहम्मद हूँ और मोहम्मद ही रहूँगा, जिसका मफहूम बयान कर रहा हूँ। तो यानी कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या है? झुक जाना, हक सच पे रहो। हमारा दीन ये हुक्म देता है कि जब तुम सच पे हो और हक पे हो, ज्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर किसी ने गलती कर दी और अपनी माफ़ी मांगता है, तुम ताकत रखते हुए भी उसे माफ़ कर दो तो अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें अपना महबूब बना लेंगे। मेरे भाइयों, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम गज़वा खैबर से वापस तशरीफ़ ला रहे थे और 7 सहाबी भी थे। आपने नमाज असर अदा कर ली। ये बहुत रिवायत मशहूर है। मौला अली पीछे मुजाहिदों के साथ मौजूद थे। आका करीम ने तो नमाज अदा कर ली सहाबा के साथ। अब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पहुंच गए एक मुकाम पर, पीछे से मौला अली भी तशरीफ़ ले आए। मौला अली से हुजूर ने फरमाया, अली यार मुझे आराम करने का जी चाह रहा है। अब मौला अली हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को कैसे इनकार कर सकते थे? मौला अली बैठ गए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक मौला अली की गोद में रखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। ये वही रिवायत है जिसके बारे में असर की नमाज का जिक्र किया जाता है। इस रिवायत से पता लगा कि आका करीम ने पहले ही नमाज अदा कर ली थी। मौला अली ने नमाज उस वक्त नहीं अदा की थी, वो पीछे मुजाहिदों के साथ थे। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मौला अली की गोद में बैठ के मौला अली की गोद में अपना सर रख के सो गए। अब लेकिन मौला अली जिंदगी में पहली बार नमाज असर कज़ा कर रहे थे। जिंदगी में पहली बार। दिल में थी तो सही ना बात कि मैं कैसे नमाज असर कज़ा करूं, मैं कैसे नमाज असर को छोड़ दूं। लेकिन फिर क्या हुआ? फैसला किया कि नमाज असर छोड़ूंगा, नमाज इश्क छोड़ूं तो क्यों छोड़ूं, वफा के सिलसिले की ये रस्म तोड़ूं तो क्यों तोड़ूं।
फैसला किया जी हुजूर को नहीं जगाऊंगा बल्कि नमाज असर छोड़ दूंगा। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, मौला अली नमाज असर कज़ा कर रहे हैं, लेकिन दिल में बात थी, रहा ना गया। जो अंदर तूफान था मोहब्बत नमाज का, उसने क्या शक्ल इख्तियार की, आंखों के जरिए बहना शुरू कर दिया। मौला अली की मुबारक आंखों से आंसू निकले, चेहरे नूर पर गिरे। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम बेदार हुए, अपने भाई मौला अली को देखकर बेकरार हो गए। हुजूर ने फरमाया अली क्या माजरा हुआ? सब कुछ जानने वाले महबूब ने फरमाया तालीमात उम्मत के लिए। मौला अली करते हैं या रसूलुल्लाह नमाज असर कज़ा हो गई, नमाज असर कज़ा हो गई। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को चाहिए था ना ये फरमाते कि भाई तुम कज़ा पढ़ लो, लेकिन आका करीम की शान क्या है इस हदीस से साबित हुआ। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली तुम नमाज अदा पढ़ोगे या कज़ा पढ़ोगे? या सूरज तो ढल चुका। फिर हुजूर की फरमा रहे, इससे पता लगा कि अल्लाह ने गैब की कुंजियां महबूब के दस्ते मुबारक में अता फरमाई है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदा पढ़ोगे या कज़ा पढ़ोगे? मौला अली ने फौरन अर्ज़ किया रसूलल्लाह मैं अदा ही पढ़ूंगा। और फिर आमना के लाल के मुबारक हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद हो गए और दुआओं के अल्फाज क्या हैं जिनका मफहूम, या अल्लाह तेरा बंदा अली, तेरा तहज्जुद गुजार बंदा अली तेरे नबी की फर्मा बरदारी में लगा हुआ था, तू ऐसा कर सूरज को वापस कर दे। हजरत अस्मा देखती हैं कि सूरज ढल चुका था, महबूब के हाथ उठे, सूरज पलट आया और मौला अली ने नमाज अदा की, कज़ा नहीं की। मैं कहता हूँ जिनके आका करीम के हाथ उठें और सूरज वापस पलट आए, चांद के दो टुकड़े हो जाएं, आका करीम की शान मुबारक है यार। ये सब अदब है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का। तो आका करीम के जितना अदब करेंगे अल्लाह हमसे उतना ही राज़ी होगा। आज इस उम्मत को ज़रूरत है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के करीब जाए, आका करीम से मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत करें। और माज़अल्लाह वो लोग कहते हैं जो बेअदब है हुजूर के, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था, माज़अल्लाह हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को इख्तियार नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, हुजूर तो हमारी तरह है, माज़अल्लाह वो कहते हैं। मैं कहता हूँ जिसकी तेरी बात तुम्हारे घर में कोई बीवी नहीं सुनती तेरी, और तू उसको नाप रहा जिसको नापा नहीं जा सकता, तू उसको तोल रहा जिसको तोला नहीं जा सकता, जिसके कहने को चांद भी मानता है, जिसके कहने को सूरज भी मानते हैं, और जिसके कहने को दरख्त भी मानते हैं, जिसके कहने को पूरी कायनात मानती है, उसी हस्ती का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखा है कि एक अरबी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर खिदमत हुआ, अर्ज करता है या रसूलल्लाह मेरा जी तो चाहता है कि मैं आप पर ईमान ले आऊं, लेकिन एक शर्त है। हुजूर ने फरमाया बता तेरी क्या शर्त है? अर्ज की महबूबा जो सामने दरख्त है ना, अगर ये कभी आपकी गवाही दे देना कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। अब हुजूर पे लाजिम तो नहीं था कि हर किसी पे अपनी नबूवत को मनवाते कि भाई देखो मैं नबी हूं, मैं मौजूद दिखा रहा हूँ। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाले मान गए और अल्लाह ने बहुत से लोगों को मनवाया और वही माने जो हिदायत पे थे। लेकिन नबी का फर्ज होता है कि वो अपने आप को दिखाए कि भाई मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, तो मुझ पर ईमान लाओ। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने तालीमात उम्मत के लिए उस अरबी को कहा अच्छा जा उस दरख्त को पैगाम दे दे कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है, तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। पैगाम किसके हाथ भेज रहे हैं? अरबी के। और पैगाम किसको भेज रहे हैं? दरख्त को। कितनी हैरान अंगेज बात है। वो हैरान हो गया, या रसूलल्लाह आ जाएगा वो? हुजूर ने फरमाया तू पैगाम जाकर देकर तो देख। वो शख्स दौड़ा गया और जाके पैगाम दिया। लिखा है कि दरख्त ने अपनी जड़ें फौरन जमीन से बाहर निकाली और अपने आप को घसीटता हुआ महबूब की बारगाह में हाजिर खिदमत हो गया। और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, पहले महबूब पर सलाम पढ़ा, दुरूद और सलाम का नजराना पेश करने के बाद लिखा है कि दरख्त के हर पत्ते से आवाज आने शुरू हो गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद और कोई इबादत के लायक नहीं है। ये वो अरबी देखकर हैरान हो गया और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मुकद्दस कदमों में गिरकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो यानी कि यार हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखा दिया कि जब तक तुम मेरी ताज़ीम नहीं करोगे, मेरा अदब नहीं करोगे, तो तुम अल्लाह के करीब नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, अब वक्त है कि हम हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, आका करीम की शान में अपने नजराने पेश करें, नात पढ़ें, दुरूद और सलाम पढ़ें, इन तरह की महफिलों में शिरकत करें। और जब ऐसी महफिलों में हम आएंगे तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तो खुद हमें अपना बनाएंगे। आका करीम तो चाहते हैं कि मेरा बंदा, मेरा उम्मती मेरे पास आए। कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का तो इश्क अबू बकर से ऐसा है कि वो तो भाई आज भी साथ है। हमें तमाम सहाबा कराम की ताज़ीम करनी है। कोई कहे कि मौला अली अफजल या अबू बकर सदीक अफजल, तो मैं कहता हूँ जिसको मुस्तफ़ा ने नहीं तोला, जिनको मुस्तफ़ा ने घटाया नहीं, तो तुम उनको कौन होते हो घटाने वाले? तुम कौन होते हो नापने वाले? बल्कि कुरान गवाही दे रहा है कि ये आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। मफहूम बयान करो। और काफिरों पे सख्त हैं। अल्लाह फरमा रहा है कुरान मजीद में, सहाबा कराम अहले बैत आपस में मोहब्बत करने वाले नरम हैं और काफिरों पे सख्त हैं।
اگر آج ایک طبقہ کہے جی مولا علی افضل تھے, ایک ہے ابو بکر صدیق افضل تھے, کلمہ ایک رسول کا پڑھ رہے ہیں, جب تمہارے سامنے سوال کیا جائے تو تم کہو بھائی دونوں ہی افضل تھے, کوئی شان کسی کی کم نہیں ہو سکتی. مولا علی کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, جن کے نکاح میں حضور کی بیٹی, جن کی پرورش آقا کریم کے گھر ہوئی. مولا علی وہ ہستی ہیں, حضور نے فرمایا میرا مقام جو اللہ کی بارگاہ میں وہی مقام علی کا, میری بارگاہ میں حضور نے فرمایا مولا علی کے دیدار کے لیے تو فرشتے بھی آیا کرتے تھے. اور ابو بکر صدیق کی شان میں بہت بڑی حدیثیں ہیں, فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر تیرا حق اللہ ہی ادا کرے گا. حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق جب بھی کسی کا مال آیا تو میں نے اس کا ہی سمجھ کے خرچ کیا, لیکن ابو بکر کا جب بھی مال آیا میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا. تو حضور نبی علیہ السلام نے تو بھائی دونوں کو شان عطا فرمائی ہیں, اور ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں تمام صحابہ کرام, تمام اہل بیت کو, تمام بڑی جتنی اللہ نے شان عطا فرمائی ان سب کو دینے والے ہیں. ہم کسی کو گھٹانے کے قائل نہیں ہیں, تمام برابر ہیں اور تمام ہی مصطفیٰ کے پیارے ہیں.